Okay, guys, today we will start our discussion with first law applied to open system or flow processes. As I told you, this is very important topic because we have learned first law how to apply it to closed system, which was little easier for us to apply the first law, but first law applied to open flow processes involved some new parameters, few more parameters that you need to understand how to apply a first law to open flow processes. Now, before I enter into this topic, you should know what is exactly the open flow processes or open system. As I told you, there are two types of system. One is closed system and other one is open system. Closed system, as I told you, it is a fixed region, fixed mass system where no mass enters into the system, or no mass can leave the system. Such type of system is called closed system. But open system is the system wherein the mass interaction may happen. For example, I will tell you, there is an example of compressor or pump, or you can even take an example of nozzle or turbine. So if you have seen the air compression, where air is continuously enters into the compressor and goes out of the compressor continuously, so there is a mass interaction in the compressor. So such system is called open system, right? And closed system is based on control mass system, because we control the mass there and we analyze the system. But open system is based on control volume system. And what is control volume? Control volume is a fixed region in a space where our concentration is put, right? Fixed region in a space where the concentration is made or concentration is put. ऐसे सिस्टम को कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम बोलते हैं, राइट? नाउ हमको एनालाइज करना है कि ओपन सिस्टम को फर्स्ट लॉ कैसे अप्लाई करना है. बट बिफोर दैट कुछ सिस्टम हम आइडेंटिफाई करते हैं. लेट अस कंसीडर ए कंट्रोल वॉल्यूम. लेट अस कंसीडर, ये जो येलो पोर्शन दिख रहा है हमारे पास, कंसीडर दिस इज ए कंट्रोल वॉल्यूम, राइट? और लेट अस आइडेंटिफाई टू मोर सिस्टम. यहाँ पे जो वन सेक्शन दिख रहा है, दिस एज ए इनफ्लो सिस्टम, यहाँ से मास क्या करेगा? एंटर करेगा. और ये जो टू सेक्शन दिख रहा है जहां से मास एग्जिट करेगा. सो दिस इज एन इनफ्लो सिस्टम एंड दिस टू is an outflow system. Okay, and let us say that the heat is added, delta q by delta t amount of heat is added in the control volume. So normally what happens is we express the heat interaction and work interaction in terms of time in the open flow system, because it is a continuous flow system. Mass is continuously flowing in and out of the system, and that's why any heat interaction or any work interaction, we express it in the form of rate of change. So rate of heat transfer, delta q amount of heat is being transferred in particular time. So this is how we express the heat interaction. So uh, rate of change of heat with respect to time, we express it as delta q by delta t. So let us say that in this control volume, delta q amount of heat is being transferred. And because of this heat transfer and because of the mass flow, the shaft rotates, and let us say that delta w amount of work is transferred from the control volume. So the control volume receives the delta q amount of heat, and it delivers delta w amount of work. So you must have understood what we are considering. We are considering a control volume where there is an inflow as well as there is outflow, and delta q amount of heat is transferred over a particular period of time, and delta w amount of work is delivered by the system over a particular period of time. So this we have analyzed. Now let us say that in an inflow system, m1 dm1 amount of mass flow is entering into the system.
So mass flow which is entering is dm1 by dt, because all the quantities we are expressing with respect to time over here, rate of change of the quantities, we express all the quantities here in the control volume system with respect to time. So let us say that in inflow system, dm1 amount of mass is entering into the system and dm2 by dt amount of mass is exiting the system or going out of the system, right? And rate complete change in mass because of the inflow and outflow. What is the change in mass flow rate is given by mcv, right? Change in mass flow rate is given by mcv, and change in energy is given by ecv. So let us go for the further analysis. First of all, identify the difference in control mass system and control volume system. In control mass system, there is no mass interaction. But here in control volume system, there will be mass interaction. So dm1 by dt amount of mass entering into the system and dm2 by dt amount of mass going out of the system. And rate of change, uh, the difference of these two mass flow rate is identified by mcv, right? So let us proceed. First of all, we need to apply the conservation of mass for the control volume. Conservation of mass is a very simple principle, and you will again discuss it in fluid mechanics also. This is called a famous continuity equation. इसको continuity equation बोलते हैं, जो कि आप fluid mechanics में फिर से discuss करोगे. तो conservation mass क्या है? बहुत ही simple phenomena है. यहाँ पे होता है क्या? मास इन कितना हो रहा है एंड मास आउट कितना हो रहा है, ये दोनों का डिफरेंस होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ मास, राइट? सो अगर मेरा मास जो इन कर रहा है वो है dm1 by dt है, एंड जो एग्जिट कर रहा है जो कि dm2 by dt है, तो mass in minus mass out will be rate of change of mass, right? So very simple conservation of mass principle. So dm1 by dt minus dm2 by dt is equal to dmcv by dt, which is the rate of change of mass or mass accumulating inside the system, right? अगर ये स्टेडी सिस्टम रहेगा, स्टेडी स्टेट रहेगा, मतलब जो मास इन कर रहा है और जो एग्जिट कर रहा है वो सेम रहेगा हर every time the mass entering into the system is equal to mass exiting the system, ऐसा रहेगा तो dm1 by dt is equal to dm2 by dt रहेगा. लेकिन for the sake of analysis do not consider that कि ये mass flow same है, तो अलग अलग है. तो मास जो अकुमुलेट होगा सिस्टम में, ये जो अलग अलग रहेंगे, अगर dm1 by dt is greater than dm2 by dt, तो ये जो accumulation of mass होगा inside the control volume will be this much. So rate of change of mass will be the difference of dm1 by dt minus dm2 by dt. Okay, now let us apply the first law. Abhi you will ask me a question, that case a first law is there for closed system, when then why don't you apply it to open system as well? But we can't apply the first law to the same analysis to open system, because in closed system we consider that it is a control mass system, and in open system we consider that the system is analyzed on the basis of control volume method. But if you see thoroughly, you will understand that the basis of first law is same for both the system. Basis is same, but the way we approach the problem is different. So the way we approach the problem in control mass system is different, and the way we approach the system in control volume is different. So what is the basic difference? In control closed system, there is only heat and work interaction, right? There is only heat and work interaction because there is no mass inflow and mass exit. So only heat and work interaction is there. That is why only heat, you will see only three parameters: heat and work and internal energy. Only three parameters are there in the first law when we consider the first law analysis to close the system. But here one more parameter which comes into picture is the mass flow rate. So because of the mass flow rate, there is certain energy associated with this mass flow stream. There is energy associated with this flow stream. आपको पता है कि जो भी flow stream रहता है, जो water रहता है या फिर air रहेगा, fluid रहेगा,
जो भी फ्लूइड रहेगा, most of the time it will be air or sometimes it might be water also. सो जो फ्लूइड रहता है या फिर एयर रहती है, जो स्टीम रहती है, उसमें क्या होती है, एनर्जी होती है. जो मास फ्लो रहता है, जो स्ट्रीम रहता है, उसमें एनर्जी रहती है. तो पहले तो आपको जो फर्स्ट लॉ है वो बेसिकली conservation of energy principle से derive किया गया है, right? So the first law was basically derived from conservation of energy. Conservation of energy क्या बोलती है? Conservation of energy ये बोलती है कि energy cannot be created nor it can be destroyed, but it can only be transferred. तो अगर मुझे पता चले कि कितना सिस्टम में एनर्जी इन कर रहा है एंड कितना सिस्टम में एनर्जी आउट कर रहा है, ये दोनों का जो डिफरेंस होगा वो रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी होगा, राइट? तो पहले तो हमको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कितना एनर्जी सिस्टम में इन कर रहा है, right? How much amount of energy is entering into the system? Mass conservation of mass is very simple. How much amount of mass flow is entering into the system आपने फाइंड आउट किया, वो बहुत इजी है. लेकिन अभी अगर conservation of energy principle मुझे अप्लाई करना है इस सिस्टम को, then you need to identify how much amount of energy is entering into the system. अभी अगर ये क्लोज्ड सिस्टम होता तो आपको पता था कि कितना एनर्जी एंटर कर रहा है, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी अमाउंट ऑफ हीट इज एंटरिंग इनटू द सिस्टम, जो कि एनर्जी है इन द फॉर्म ऑफ हीट, ये पता है. तो लेकिन हमको ये नहीं पता है कि जो फ्लो स्ट्रीम होता है, जो फ्लो स्ट्रीम होता है, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फ्लो स्ट्रीम है, ये कौन सी एनर्जी होगी, ये पता करना पड़ेगा हमको. ये एडिशनल पैरामीटर है ओपन सिस्टम में. अगर ये हमने फाइंड आउट किया, देन कितना एनर्जी इनपुट हो रहा है, कितना एनर्जी आउट हो रहा है, ये हमको पता चलेगा. तो पहले तो ये फाइंड आउट करना पड़ेगा हमको कि कितना स्टोर्ड एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्ट्रीम ऑफ मास. तो अमाउंट ऑफ स्टोर्ड एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्ट्रीम पर यूनिट मास कितना होगा, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा पहले तो. तो आप मुझे कोई भी, अगर आपको आंसर आता है तो जस्ट अनम्यूट योरसेल्फ एंड आंसर मी द माय क्वेश्चन. माय क्वेश्चन इज, व्हाट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्ट्रीम ऑफ मास? कौन सी एनर्जी एसोसिएट होती है? अगर कुछ फ्लूइड पैरामीटर है, जो फ्लूइड है, मेरे पास स्ट्रीम है कुछ, उस स्ट्रीम में कौन सी एनर्जी एसोसिएट होती है, बताओ मुझे. Anybody can answer this question. जैसे कि फॉर एग्जांपल वाटर स्ट्रीम है, उसके साथ कौन सी एनर्जी एसोसिएट होती है? कैन एनीबडी टेल मी दिस? Kinetic energy. Very nice. Because of the velocity of the flow stream, there is a kinetic energy. Very nice. Next energy associated with the सर अगर फ्लूइड हाइट पे हुआ तो पोटेंशियल एनर्जी. exactly, there will be a potential energy. Anybody else? Any other parameter which is associated with the flow stream? We have discussed this parameter. For your memory, let me take you to the second or third lecture. I guess we have discussed the internal energy also. A flow stream, it might be gas, it might be fluid, anything. A flow stream is always associated with the internal energy, right? Internal energy, because अगर temperature मेरा absolute zero से ज्यादा है, absolute zero temperature से जिसका temperature ज्यादा है, उस सारे फ्लूइड में खुद का इंटरनल एनर्जी होता है. इंटरनल एनर्जी क्यों होता है? बिकॉज ऑफ द vibrations of the molecules, right? Because of the temperature, there is an energy change, and that's why there is an internal energy change due to temperature. तो internal energy होता है flow stream में. Internal energy होता है, kinetic energy होता है because of the velocity associated with the flow stream. Potential energy होता है because of the position of the flow stream in the conservative field, right? तो ये पोटेंशियल एनर्जी होता है. और एक एनर्जी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्ट्रीम होता है, वो होता है फ्लो वर्क, जिसको बोलते हैं फ्लो वर्क. जैसे कि फॉर एग्जांपल ये कॉर्नर वाले डायग्राम में देखो आप, यहाँ पे जो पिस्टन है वो पुश कर रहा है वाटर को, और पिस्टन का एरिया है ये, और उसमें जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो F है. तो आपको पता है कि फोर्स कैसे फाइंड आउट करते हो? प्रेशर इनटू एरिया करते हो आप. सो फोर्स विल बी इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, एंड वर्क डन विल बी, वर्क डन क्या होता है? ये पिस्टन ने कितना डिस्प्लेस किया, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स ये पिस्टन ने इस वाटर को कितना डिस्प्लेस किया. तो अगर लेट से L डिस्प्लेसमेंट हुआ, L मीटर ऑफ डिस्प्लेसमेंट, तो वर्क डन कैसे फाइंड आउट करते हैं? वर्क डन इज इक्वल टू F इनटू L. प्रेशर, फोर्स क्या होता है? प्रेशर इनटू एरिया. सो प्रेशर इनटू एरिया इनटू L, एंड ये एरिया इनटू लेंथ होता है वॉल्यूम, जो कि हमने पीडीवी कॉन्सेप्ट, जब मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था पीडीवी वर्क क्या होता है, राइट?
सो प्रेशर वॉल्यूम के रिलेटेड जो वर्क होता है उसको बोलते हैं फ्लो वर्क, बिकॉज ऑफ द प्रेशर एनर्जी एसोसिएटेड विद द फ्लूइड, राइट। जो एनर्जी रहती है उसको बोलते हैं फ्लो वर्क। तो अगर नट शेल में हम देखेंगे तो हमको ये समझ में आएगा कि एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्ट्रीम पर यूनिट मास जो रहती है वो रहती है इंटरनल एनर्जी, दूसरी होती है फ्लो वर्क, तीसरी होती है काइनेटिक एनर्जी, चौथी होती है पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ पे देखो काइनेटिक एनर्जी मैंने mv²/2 में मेंशन नहीं किया है। व्हाई? बिकॉज ऑल ऑफ दीज एनर्जीज आर टेकन पर यूनिट मास बेसिस। तो आप अगर देखोगे तो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh, जेड मैंने हाइट के लिए लिखा है, राइट, mgz होता है, लेकिन यहाँ पे gz लिखा है। Why? Because all these energies are considered per unit mass. Remember this always. I have considered all these energies per unit mass. सो फर्स्ट जो होगा यू पैरामीटर, ये इंटरनल एनर्जी नहीं होगा, ये होगा स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी। आपको मैंने लास्ट टाइम भी बताया था, जिस भी क्वांटिटी को हम पर यूनिट मास बेसिस पे लेते हैं, जैसे कि एंथैल्पी होती है, एंथैल्पी को एंथैल्पी बोलते हैं, अगर उसको पर यूनिट मास बेसिस पे कंसीडर किया तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक एंथैल्पी। वॉल्यूम वॉल्यूम होता है, लेकिन वॉल्यूम को अगर मैं पर केजी पर यूनिट मास पे डिफाइन करूंगा तो हो जाएगा स्पेसिफिक वॉल्यूम, राइट। तो वॉल्यूम अगर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है तो स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बन जाती है, बिकॉज इज ए कांस्टेंट, स्पेसिफिक वॉल्यूम कांस्टेंट होता है, राइट। तो यहाँ पे सारे क्वांटिटीज पर यूनिट मास बेसिस पे लिए हैं, दैट्स व्हाई इट इज नॉट 1/2 mv², इट इज v²/2 ओनली, बट दिस इज ए काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास बेसिस, राइट। सो ये u जो है वो स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी है, ये है फ्लो वर्क, दूसरा है काइनेटिक एनर्जी, और लास्ट जो पैरामीटर है gz है, ये है पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास बेसिस पे, राइट। आपको ये पता चला कि जो फ्लो स्ट्रीम होता है उसके साथ कौन सी एनर्जी एसोसिएट होती है, ये तो पता चला आपको। अभी आप कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी इनपुट हो रहा है इस कंट्रोल वॉल्यूम में, ये पता चलेगा आपको कैसे। आपको पता है हीट जो ऐड हो रही है सिस्टम में ΔQ/ΔT, राइट, हाउ मच अमाउंट ऑफ हीट इज एडिंग इनटू द सिस्टम, ये आपको पता है। प्लस ये फ्लो स्ट्रीम के साथ कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एंटर कर रहा है ये भी पता है। सेम वे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो स्ट्रीम के साथ एग्जिट कर रहा है ये भी पता होगा, और एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क एग्जिटिंग आउट ऑफ द सिस्टम, आउट ऑफ द कंट्रोल वॉल्यूम, ये भी पता है कितना हो रहा है एग्जिट, वर्क डन। वर्क क्या है? एनर्जी है। हीट क्या है? एनर्जी है। तो एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ वर्क कितना एग्जिट कर रहा है कंट्रोल वॉल्यूम से? ΔW/ΔT। तो आपको ये पता है, तो आपको अभी यही करना है, फर्स्ट लॉ अप्लाई करना है या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई करना है इस कंट्रोल वॉल्यूम को, राइट। तो कैसे करोगे? एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। लेट अस गो एंड सी हाउ कैन वी अप्लाई टू द कंट्रोल वॉल्यूम सिस्टम। सो बेसिक इक्वेशन क्या होगा हमारा? एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, राइट। ये सबको समझ में आया? यहां तक किसी को डाउट है? Anybody has doubt in this? कंट्रोल वॉल्यूम को हम कैसे एनालाइज कर रहे हैं, इसमें कुछ डाउट? अगर नहीं है डाउट तो प्लीज से नो सर। No, sir. All right. So, what is the change in energy? The amount of energy in minus the amount of energy going out is equal to change in energy, rate of change of energy, you can say, right? So, rate is always expressed in terms of time, correct? तो यहाँ पे जो एनर्जी E1 दिख रहा है आपको, एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्ट्रीम है, एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्ट्रीम। जो स्ट्रीम अंदर आ रहा है कंट्रोल वॉल्यूम में, फ्लो स्ट्रीम, उसके साथ जो एनर्जी एसोसिएटेड है, जो E हमने यहाँ पे लिखा था, देखो E स्टैंड्स फॉर स्टोर्ड एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्ट्रीम। तो अगर एंट्री वाला पॉइंट होगा वहां पे हम डिनोट करेंगे E1 से, एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्ट्रीम पर यूनिट मास एट द एंट्री, जिसको बोलेंगे हम E1, and energy associated with the flow stream which is going out will be denoted by E2, right? तो ये एनर्जी एसोसिएटेड ये पर यूनिट मास बेसिस पे है। तो इसको अगर मैंने dm1/dt से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं ये में बन जाएगा रेट, बन जाएगा रेट, बन जाएगा, राइट। जैसे कि ये ΔQ/ΔT जो है वो किस में मेंशन है? अगर Q का यूनिट किलो जूल है तो टाइम का सेकंड में रहेगा, तो किलो जूल पर सेकंड। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट ट्रांसफर है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट है ये। तो ये इसको भी मुझे रेट ऑफ चेंज ऑफ हीट में मेंशन करना पड़ेगा। तो मास, ये एनर्जी पर यूनिट मास को मैंने मास से मल्टीप्लाई कर अगर मैं करूंगा तो मुझे जो
आउटपुट में जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी किलो जूल पर सेकेंड में। तो सेम वे मुझे यहाँ पे करना है, ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी। तो ये हो जाएगा, देखो एंट्री क्या क्या कर रहा है, देखो ई इन का पैरामीटर्स कौन से है, देखो यहाँ पे कौन सी एनर्जी इन कर रही है, मास फ्लो स्ट्रीम की एनर्जी क्या है E1, एंड उसको मल्टीप्लाई करूंगा मैं dm1/dt, राइट। हाउ मच अमाउंट ऑफ मास फ्लो रेट इज एंटरिंग into the amount of energy associated with it is E1. So dm1/dt into E1, this is the first one, plus the energy in the form of heat is also entering into the control volume. The diagram is also given here, delta Q by delta T. ये एनर्जी भी इन कर रही है प्लस द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फ्लो स्ट्रीम। तो ये एंट्री कौन से वाली है, ये जो ब्रैकेट दिख रहा है नीचे वाला फर्स्ट वाला, dm1/dt into E1 प्लस डेल्टा Q by dt, इतनी एनर्जी इन कर रही है, माइनस अभी जो भी एनर्जी एग्जिट कर रही है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फ्लो स्ट्रीम कितनी एग्जिट कर रही है, dm2/dt into E2। देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों कर रहा हूं मैं, ये भी रीजन समझ लो। Why I am multiplying this mass parameter with energy per unit mass? Because this small e parameter is expressed in the form of energy per unit mass. अगर उसको मैं एनर्जी के फॉर्म में लिखना चाहूंगा तो पर यूनिट मास को कैंसिल करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करके मास से। आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? सो एग्जिट वाले पैरामीटर लिखते हैं ये वाला, माइनस वर्क के फॉर्म में एनर्जी एग्जिट कर रही है तो डेल्टा W बाय डेल्टा T, राइट। तो ये हो गया E इन, ये हो गया E आउट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी DECV/dt। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में मैंने इक्वेशन को लिख दिया है अभी, एनर्जी इन माइनस एनर्जी आउट इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी। इस इक्वेशन में अगर कुछ दिक्कत है आपको तो प्लीज रेज योर वॉइस, बिकॉज दिस इक्वेशन विल grow step by step and it will be very difficult for you to understand if you do not understand it now. You can ask me a question if you have any problem with this equation. I think nobody has a problem. So सिर्फ इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। एनर्जी एसोसिएटेड विद द फ्लो स्ट्रीम प्लस कितना हीट ऐड कर रहे हैं, ये होगा हमारा एनर्जी इनपुट। एनर्जी एसोसिएटेड विद द फ्लो स्ट्रीम विच इज गोइंग आउट माइनस कितना अमाउंट ऑफ वर्क एग्जिट कर रहा है कंट्रोल वॉल्यूम से, ये होगा हमारा एनर्जी आउटपुट। और दोनों का डिफरेंस होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम। इतना ही एनालिसिस है। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बिकॉज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होता क्या है, मतलब पहला जो आप इक्वेशन देख रहे हो ई इन माइनस ई आउट इज इक्वल टू चेंज इन एनर्जी, ये एक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का मैथमेटिकल इक्वेशन है। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही तो बोलता है ना, कितना एनर्जी इन हो रहा है कितना आउट हो रहा है, और जो अगर ई इन इज इक्वल टू ई आउट होता है ऑब्वियसली वो जीरो रहेगा, मतलब जितना एनर्जी इन किया उतना ही एनर्जी आउट हुआ। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, एनर्जी इन ज्यादा है एनर्जी आउट कम है, तो some energy is accumulated inside the system and that rate of change of energy is ECV, that is in this is the form of conservation of energy। और उसी को हमने थोड़ा सा elaborate किया है in the form of heat and energy associated with the flow stream, right। तो ये इक्वेशन सबको समझ में आया है, ऐसा समझ के मैं आगे चलता हूँ। लेकिन आप अभी देखो E1 लिखा है मैंने, यहाँ पे E2 लिखा है, स्मॉल E1 स्मॉल E2 लिखा है, एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्ट्रीम पर यूनिट मास, स्टोर एनर्जी है ये, राइट। तो E को हमने कैसे लिखा था, यहाँ पे देखो U प्लस PV, ये जो V है वो स्पेसिफिक वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम नहीं है, बिकॉज पर यूनिट मास बेसिस पे लिखा है। पर यूनिट मास बेसिस पे वॉल्यूम बन जाता है स्पेसिफिक वॉल्यूम, दैट इज व्हाई आई डिनोट इट विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल v, स्पेसिफिक वॉल्यूम। ये V है जो वेलोसिटी है, दिस इज नॉट वॉल्यूम, दिस इज वेलोसिटी एसोसिएटेड विद दैट फ्लो स्ट्रीम एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी। तो E का इक्वेशन तो बेसिकली ये है U प्लस PV प्लस V²/2 प्लस ZZ। तो E1 का क्या होगा, U1 प्लस P1 V1 प्लस V1²/2 प्लस GZ1, बिकॉज G इज कॉन्स्टेंट, ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पे मुझे E1 की जगह लिखना पड़ेगा U1 प्लस P1 V1 प्लस V1²/2 प्लस GZ1। तो लिखो वैसे सेम। सो dm1/dt, E1 को मैं रिप्लेस करूंगा U1 से, इंटरनल स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी एट entry point plus the pressure and specific volume product, जिसको बोलते हैं हम फ्लो वर्क PV। तो P1 V1 प्लस काइनेटिक एनर्जी V1²/2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी GZ1, right, plus the heat entering into the control volume delta Q by delta T।
rate of heat entering into the control volume, minus dm2 by dt into E2 को क्या लिखूंगा मैं? E2 को लिखूंगा U2 plus P2V2 plus V2 square by 2 plus GZ2, ये लिखूंगा मैं E2 को, माइनस क्या है? The energy in the form of work which is going out, rate of energy in the form of work which is going out, delta W by delta T is equal to change in energy, rate of change of energy, right? तो ये भी इक्वेशन आपको समझ में आया होगा, आई होप. नाउ दिस इज द फर्स्ट लॉ अप्लाइड टू ओपन फ्लो प्रोसेसेस. ये जो इक्वेशन आपको दिख रहा है, यही इक्वेशन है फर्स्ट लॉ अप्लाइड टू ओपन फ्लो प्रोसेसेस. अभी इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करूंगा तो बाद में आपको समझ में आएगा कि ये जो फर्स्ट लॉ क्लोज्ड सिस्टम को अप्लाई किया था एंड ओपन सिस्टम को जो मैंने अप्लाई किया है, दोनों इक्वेशन सेम ही है, लेकिन ये इक्वेशन थोड़ा बड़ा दिखता है बिकॉज इसमें थोड़ा से एक्स्ट्रा पैरामीटर्स है. अभी आप फॉर द सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग आप इमेजिन करो कि ये जो फ्लो स्ट्रीम नहीं है, मास इंटरेक्शन नहीं है इस सिस्टम में, ठीक है? आप लोगों को ये इक्वेशन दिख रहा होगा, बड़ा वाला इक्वेशन. तो इमेजिन करो आपके दिमाग में कि फ्लो स्ट्रीम इज डज नॉट एग्जिस्ट, मास इंटरेक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ हीट इंटरेक्शन हो रहा है और वर्क इंटरेक्शन हो रहा है कंट्रोल वॉल्यूम में. तो अभी क्या करोगे आप? ये जो dm1 by dt, इतना बड़ा जो व्हाइट वाला पोर्शन दिख रहा है, ये कैंसिल हो जाएगा. तो इक्वेशन क्या रहेगा बाकी? सिर्फ डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी माइनस डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा ई सीवी बाय dt, मतलब चेंज इन एनर्जी, मतलब इसको बोलते हैं इंटरनल एनर्जी. तो सेम इक्वेशन आया, डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू डी, जो फर्स्ट लॉ में हमने डिस्कस किया था. तो आपको समझ में आ रहा होगा कि अभी यहाँ पे एक्स्ट्रा पैरामीटर एक ही है, एनर्जी एसोसिएटेड विद द फ्लो स्ट्रीम ऐड हो रही है बिकॉज देयर इज अ मास इंटरेक्शन. आई होप यू अंडरस्टूड दिस. बट नाउ लेट अस सिंप्लीफाई दिस इक्वेशन विथ some other parameters. So first, the basic equation related to first law applied to open flow process is this. You need to remember this, right? Or need not to remember this, just apply ki how much amount of energy in which is coming in and how much amount of energy which is going out will be the rate of change of energy. Itna bhi agar aapko samajh hai to you will be able to apply it to any kind of system which is given, any kind of system which is given, right? So now simplify this equation. Let us investigate this equation at a steady state. तो बच्चों मुझे बताओ स्टेडी स्टेट होता क्या है? व्हाट इज स्टेडी स्टेट? स्टेडी स्टेट ये होता है कि ऑल अदर प्रॉपर्टीज ऑफ ए सिस्टम, प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंट्रोल वॉल्यूम आर नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम, आर नॉट चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम. तो अगर स्टेडी स्टेट पे मैं कैलकुलेशन करूंगा तो जितना अमाउंट ऑफ मास फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, वो चेंज नहीं होगा. अगर यहाँ पे 4 किलोग्राम पर सेकेंड एयर एंटर कर रही या फिर 4 किलोग्राम पर सेकेंड वाटर एंटर कर रहा है, तो एग्जिट भी वही इतना ही करेगा, उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट. सो द मास प्रॉपर्टीज or any other property will not change with respect to time. Energy property will not change with respect to time. The amount of energy which is going in will be equal to amount of energy which is going out at steady state. समझ में आ रहा है? मास फ्लो का भी यही रहेगा, मास एंटरिंग इनटू द सिस्टम इज इक्वल टू मास एग्जिटिंग द सिस्टम रहेगा, अलग अलग नहीं रहेगा. दैट्स व्हाई एट स्टेडी स्टेट ये जो मास चेंज रहेगा, मास फ्लो चेंज रहेगा, वो सेम रहेगा. मतलब क्या है? dmcv by dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विल बी जीरो, which means what? dm1 by dt is equal to dm2 by dt रहेगा. अगर कंसिडर करते हैं dm1 is equal to dm2 है तो उसको कंसिडर करते हैं, let us say it is dm. So dm1 by dt is equal to dm2 by dt is equal to dm by dt कंसिडर करते हैं उसको, right? And rate of change of energy भी जीरो रहेगा. Rate of change of energy at steady state will be zero. So किसी ने आपको अगर इक्वेशन पूछा है फर्स्ट लॉ अप्लाई टू ओपन फ्लो प्रोसेसेस एट स्टेडी स्टेट क्या रहेगा, तो उसका आंसर रहेगा ये इक्वेशन. तो नीचे लिखते हैं dm1 की जगह लिखते हैं dm by dt. So dm by dt into u1 plus p1 v1 plus v1 square by 2 plus gz1 plus delta q by t minus dm by dt u2 plus p2 v2 plus v2 square by 2 gz2 minus delta w by delta t is equal to zero हो जाएगा. अभी यहाँ पे dcv by dt नहीं रहेगा, जीरो रहेगा. तो यही इक्वेशन आगे लेके चलते हैं. सो यही इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखा है. इन दिस इक्वेशन all the quantities are expressed in energy per unit time. देखो सारे इक्वेशंस देखो एनर्जी पर यूनिट टाइम में एक्सप्रेस किए गए हैं. इंटरनल एनर्जी पर यूनिट टाइम पे है, यहाँ पे दिख रहा है dt नीचे है,
यहाँ पे हीट को देखो, हीट एनर्जी है पर यूनिट टाइम है। यहाँ पे भी देखो ये काइनेटिक एनर्जी dt से डिवाइडेड है, मतलब ये भी पर यूनिट टाइम है। वर्क डन भी देखो, ये भी पर यूनिट टाइम है। सो ऑल सारे क्वांटिटीज पर यूनिट टाइम पे है। अभी ये dm वाला पैरामीटर कांस्टेंट है दोनों इक्वेशन में, तो इसको हटाते हैं, मतलब ये सारे क्वांटिटीज पर यूनिट मास बेसिस पे कन्वर्ट करते हैं। अगर ये सारे क्वांटिटीज जो टाइम बेसिस पे है, इसको अगर पर यूनिट मास बेसिस पे कंसिडर करना है, मास बेसिस पे अगर मुझे लेना है, तो क्या करूंगा मैं, dm बाई dt से सारे इक्वेशन को डिवाइड करूंगा, राइट। मतलब ये मास टाइम वाला पैरामीटर चला जाएगा, मास बेसिस पे सारे इक्वेशंस आ जाएंगे। तो अगर मैं ये फर्स्ट वाले पहले वाले इक्वेशन को dm बाई dt से डिवाइड करता हूँ, तो क्या हो जाएगा, dm बाई dt डिवाइडेड बाई dm बाई dt 0 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे रहेगा सिर्फ u1 प्लस p1 v1 प्लस v1 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz1 प्लस डेल q बाई डेल t डिवाइडेड बाई dm बाई डेल dt करूंगा, तो क्या हो जाएगा, डेल q बाई डेल m आएगा यहाँ पे एट स्टेडी स्टेट, ऑलराइट। माइनस dm बाई dt कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, तो u2 प्लस p2 v2 प्लस v2 स्क्वायर बाई 2 प्लस gz2 माइनस डेल w बाई डेल t के नीचे आएगा डेल w बाई डेल m, बिकॉज नाउ ऑल दीज क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस्ड इन पर यूनिट मास बेसिस। मैंने उसको टाइम पैरामीटर को हटा दिया है, उसको डिवाइड करके मास वाले पैरामीटर से। तो ये सारे क्वांटिटीज अभी किस पे कौन से बेसिस पे है, पर यूनिट मास बेसिस पे लिखे हैं मैंने, पर यूनिट मास बेसिस पे, राइट। तो मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज करता हूँ, डेल क्यू बाय डेल एम माइनस डेल डब्ल्यू बाय डेल एम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा। आपको याद होगा मैंने एंथैल्पी का पैरामीटर सिखाया था आपको, एंथैल्पी का। तो अगर आपको याद नहीं है तो मैं आई विल टेक यू बैक टू दैट पैरामीटर ऑफ एंथैल्पी। यहाँ पे देखो एंथैल्पी मैंने क्या बोला था, एंथैल्पी क्या होता है, एंथैल्पी इज नथिंग बट U प्लस PV। Enthalpy is an energy content which is expressed as U plus PV, internal energy plus pressure volume। स्पेसिफिक एंथैल्पी क्या होता है, स्मॉल h, जो कि मास बेसिस पे रहता है। स्पेसिफिक एंथैल्पी पर यूनिट मास इज कॉल्ड स्पेसिफिक एंथैल्पी व्हिच इज नथिंग बट यहाँ पे इंटरनल एनर्जी है, ये स्पेसिफिक इंटरनल एनर्जी होगा प्लस पीवी, तो h रहता है U प्लस पीवी। तो मैं जो भी U1 प्लस P1 V1 वाले पैरामीटर है उसको मैं क्या करूंगा, एक्सप्रेस करूंगा इन द फॉर्म ऑफ H1। सो ये यहाँ पे जो दिख रहा है आपको U1 प्लस P1 V1, ये लिख सकता हूँ मैं H1। U2 प्लस P2 V2 जो दिख रहा है आपको, स्मॉल h2 लिख सकता हूँ मैं उसको, राइट। तो आगे चल के देखते हैं कि ये डेल क्यू बाय डेल एम माइनस डेल डब्ल्यू बाय डेल एम वैसे का वैसा लिखा मैंने, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये सारे पैरामीटर्स मैं उस तरफ शिफ्ट करूंगा, तो U1 प्लस P1 को लिख सकता हूँ मैं H1, U2 प्लस P2 V2 को लिख सकता हूँ H2। तो अगर मैं माइनस करूंगा ये सारे टर्म्स, तो आ जाएगा H2 प्लस V2 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ2 माइनस H1 प्लस V1 स्क्वायर बाय 2 प्लस GZ1, ये पैरामीटर आएगा। तो ये इक्वेशन आएगा। दिस इक्वेशन इज नोन एज स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, और इसको बोलते हैं SFEE। स्टेडी मतलब the all properties are not changing with respect to time। तो steady flow energy equation बहुत ही important equation है thermodynamics में। You will have to use this equation throughout the thermodynamics, and that is why I said this lecture is very very important, because first law applied to open flow processes is helpful to you in almost all the competitive examination। Even if you go to final year or third year, you will have to use this equation which is called the steady flow energy equation। और steady flow energy equation हमने derive किया है कौन से यूनिवर्सल इक्वेशन से, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही बोलता है कि कितना एनर्जी इन हो रहा है माइनस कितना एनर्जी आउट हो रहा है विल बी इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी होगा, राइट। और उसी इक्वेशन से हमने स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन डिराइव किया है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आउटपुट में क्या मिल रहा है मुझे, हीट एंड वर्क का जो इंटरेक्शन होता है, जो दोनों का डिफरेंस रहता है, वो डिफरेंस आता है प्रॉपर्टीज, दोनों के प्रॉपर्टीज, एंट्री में कितना एंथैल्पी है, कितना काइनेटिक एनर्जी है, कितना पोटेंशियल एनर्जी है, माइनस एग्जिट में कितना, ये दोनों का जो डिफरेंस आता है वो होता है हीट एंड वर्क इंटरेक्शन। सो हमारा जो एनालिसिस रहता है बहुत ही, देखो ऑलमोस्ट ऑल द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस यू सी टरबाइन, यू सी कंप्रेसर, यू सी पंप। यहाँ पे इंजीनियर्स को क्या फाइंड आउट करना होता है, कितना एनर्जी पंप कंज्यूम कर रहा है, कितना एनर्जी पंप कंज्यूम कर रहा है, कितना वर्क दे रहा है मुझे। कंप्रेसर में भी यही सोच रहे हैं, कितना इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहा है कंप्रेसर, और कितना एयर मेरा कंप्रेस करना, आउटपुट में मुझे क्या मिल रहा है और इनपुट में क्या दे रहा हूँ, यही हमारा एनालिसिस रहता है, राइट। तो जो हीट एंड वर्क इंटरेक्शंस को अगर हमने प्रॉपर्टीज में कन्वर्ट किया, तो जो
कैलकुलेशंस रहता है हमारा इजी रहता है, राइट. एब्सोल्यूट हीट और एब्सोल्यूट वर्क डन बाय सिस्टम फाइंड आउट करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है. लेकिन इन टर्म्स ऑफ इफ हीट एंड वर्क इंटरेक्शंस आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ प्रॉपर्टीज सच एज वेलोसिटी, सच एज एंथैल्पी, तो बहुत ही इजी रहता है. ठीक है. लास्ट पॉइंट, अगर थर्मोडायनेमिक एप्लीकेशंस आप देखोगे, ऑलमोस्ट ऑल द एप्लीकेशंस, all applications में kinetic energy change and potential energy change almost zero होते हैं, almost negligible होते हैं. क्यों? For example, कोई भी example ले लो आप example ले लो compressor का. compressor में क्या होता है, most of the time kinetic energy change जो रहता है वो almost zero होता है. potential energy तो नहीं होता है उसमें, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी कब रहेगा, जब अगर मेरा सिस्टम कुछ एलिवेशन में है एंट्री वाला और एग्जिट वाला पॉइंट जो है वो नीचे है, तो दोनों के बीच में कुछ अगर एलिवेशन है तभी पोटेंशियल एनर्जी चेंज रहेगा, अदरवाइज इट विल बी जीरो. लेकिन ऑलमोस्ट ऑल द एप्लीकेशंस, हीट एक्सचेंजर देखो आप, जो गाड़ी का रेडिएटर रहता है वो देखो, जो एंट्री करता है पानी और एग्जिट करता है पानी, उसमें कुछ काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व नहीं होती है वहां पे, राइट. और पोटेंशियल एनर्जी चेंज जो रहता है वो जीरो रहता है. एंड दैट्स व्हाई मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस में चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एंड चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो ही रहते हैं. और रहता क्या पैरामीटर है, सिर्फ अगर मैं काइनेटिक एनर्जी को जीरो कर दूं एंड पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कर दूं, तो पैरामीटर विच रिमेन्स इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा एम माइनस डेल्टा डब्ल्यू बाय डेल्टा एम इज इक्वल टू H2 माइनस H1. तो बहुत ही हैरान करने वाली बात यह है कि जो हीट एंड वर्क इंटरेक्शन होते हैं सिस्टम में, दे आर कमिंग इक्वल टू चेंज इन एंथैल्पी, जो कि सिस्टम की प्रॉपर्टी है, जो सिर्फ एंड स्टेट पे डिपेंड करती है. अगर हमको एंड के प्रॉपर्टीज कुछ पता है कि जो सिस्टम, लेट्स से कंप्रेसर में गैस जा रहा है, एंट्री करते समय मुझे पता है एयर का टेम्परेचर एंड प्रेशर क्या रहता है, नॉर्मल रहता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर टेम्परेचर. उस प्रेशर टेम्परेचर से मैं एंथैल्पी फाइंड आउट कर सकता हूँ कि कितना एंथैल्पी होगा, कितना एनर्जी होगा उस सिस्टम में, राइट. तो वो पता होगा मुझे. एग्जिट एग्जिट जो कंप्रेसर से एयर कंप्रेस होकर बाहर निकलती है, उसका प्रेशर मैं माप सकता हूँ, उसका टेम्परेचर भी माप सकता हूँ, तो उसके प्रॉपर्टीज मुझे पता है, तो उसका भी एंथैल्पी मैं फाइंड आउट कर सकता हूँ. तो अगर सिर्फ मुझे एंथैल्पी चेंज पता है तो आई कैन बी एबल टू फाइंड व्हाट इज द हीट एंड मास इंटरेक्शन, वर्क इंटरेक्शन इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम. कितना इजी बन गया सिंप्लीफिकेशन, राइट. So that is why the first law applied to open flow processes and its simplification is very useful in practical application to find out the heat and work interaction involved. लेकिन अगर कंट्रोल वॉल्यूम में क्या हो रहा है, कंट्रोल वॉल्यूम में इनसाइड द, अगर मैं पूछूं जो कंप्रेसर के इनसाइड सिस्टम है, कंप्रेसर के अंदर कितना एनर्जी चेंज हो रहा है फाइंड आउट करो बोलो, तो इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू टू फाइंड आउट. बट अगर एंड प्रॉपर्टी, एंड स्टेट पे डिपेंड होने वाला प्रॉपर्टी फाइंड आउट करना है तो वो इजी रहता है. So first law applied to open flow processes where kinetic energy and potential energies are negligible, are considered negligible, वो इक्वेशन रहता है ये. तो यहाँ पे मोटे मोटे तौर पे 3 इक्वेशन आपको याद रखने हैं. पहला इक्वेशन जो होता है ये वाला इक्वेशन, सॉरी ये ऊपर वाला इक्वेशन, टॉप वाला इक्वेशन, जिसको फर्स्ट लॉ अप्लाइड टू ओपन फ्लो प्रोसेसेस बोलते हैं. दूसरा इक्वेशन जो मास बेसिस पे हमने लिखा है उसको बोलते हैं स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. एंड तीसरा इक्वेशन जहां पे काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जीज आर नेग्लिजिबल. ये 3 इक्वेशन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखने हैं. मैं तो बोलूंगा you should not mug up this equation, but you should understand this equation and derive this equation. Try to derive this equation and then only you will understand. I hope you must be having many doubts, but if once we solve the problems, your all doubts will be clear. But now for the sake of 5-10 minutes, I just want all of you to ask me questions. Anywhere, if you have any difficulty, I will resolve this difficulty because this equation is very extremely important. Please ask me questions now in any of the slide. Otherwise, I will proceed. Anybody who has doubt कि ये मास बेसिस पे, पहले टाइम बेसिस पे था फिर मास बेसिस पे क्यों किया, ऐसा कुछ क्वेश्चन किसी को है? Anybody? Are you listening to me?
Say yes or no if you are listening to me. Yes, sir. You don't have any question? For now, no, sir. Okay. Let us see applications of first law applied to open flow system. जो practical applications होते हैं उसको मैं कैसे अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है, वो देखते हैं. तो पहला तो एग्जांपल होगा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. हम सब लोगों ने कंप्रेसर देखा होगा. इवन इन एट योर होम यू मस्ट बी हैविंग रेफ्रिजरेटर. रेफ्रिजरेटर में भी कंप्रेसर होता है. कॉलेज में देखोगे तो कंप्रेसर होता है. कंप्रेसर बड़ा वाला कंप्रेसर है, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर. कंप्रेसर जो है हमारे कॉलेज में है, बाद में देखेंगे हम फिजिकली. लेकिन कंप्रेसर का फंडा क्या होता है बताओ मुझे. कंप्रेसर में कुछ गैस इन होता है एंड कुछ गैस आउट होता है. गैस इन जो होता है उसका प्रेशर कम रहता है और कंप्रेस होने के बाद उसका प्रेशर बढ़ जाता है. तो कंप्रेसर का काम क्या है, गैस को या फिर किसी भी फ्लूइड को कंप्रेस करना है, राइट. फ्लूइड माइट बी एनीथिंग, कोई भी गैस हो सकता है, राइट. नॉट ओनली एयर बट एनी अदर गैस. नाइट्रोजन भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है, किसी को भी हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में. तो ये होता है कंप्रेसर का काम, राइट. तो कंप्रेसर के डिवाइस में आप मुझे बताओ उसमें हीट इंटरेक्शन होता है क्या? हेलो. यस. हाँ सर, जो कंप्रेसर में जो एलटी लो टेम्परेचर लो प्रेशर लिक्विड वेपोरेंट जाते हैं और वो बाहर हाई प्रेशर हाई बाहर में जो टेम्परेचर पे बाहर एग्जिट करता है, राइट. बाहर वेरी एग्जिट करता है. राइट. तो हीट इंटरेक्शन नहीं होता है. हम कुछ हीट कैंडल से हीट सप्लाई करते हैं क्या उसको, या फिर कोई फ्यूल नो. जला के हीट सप्लाई करते हैं क्या कंप्रेसर को? नहीं. नहीं करते हैं. तो हीट इंटरेक्शन जीरो होता है कंप्रेसर में. दैट मीन्स जो हमारा जो ये जो इक्वेशन था डेल क्यू बाय डेल एम, हीट एडेड पर यूनिट मास जो रहता है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम हीट नहीं एंटर कर रहे सिस्टम में. लेकिन वर्क सप्लाई, वर्क जो है होता है वो रहता है. सिस्टम को वर्क सप्लाई करना पड़ता है. तो हम जो वर्क सप्लाई करते हैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करते हैं. समझ में आ रहा है आपको? कंप्रेसर को जो हम वर्क सप्लाई करते हैं वो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी करते हैं. कैसे? मोटर को चलाने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करते हैं. दैट्स व्हाई मोटर चलती है और वो मोटर चल के कुछ काम करती है. मोटर चलने के बाद गैस कंप्रेस होता है. तो सिस्टम कंप्रेसर को क्या करना पड़ता है, हमको वर्क सप्लाई करना पड़ता है. वर्क इज बीइंग डन ऑन द सिस्टम. तो कंप्रेसर को मैं कंट्रोल वॉल्यूम में कंसीडर करूंगा. तो कौन सी एनर्जी इन कर रहे हैं, कौन सी एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, आप बताओ मुझे. वर्क डन सप्लाई कर रहे हैं, बराबर, मोटर के फॉर्म में. बराबर है कि नहीं? सो डेल क्यू बाय डेल एम पैरामीटर जीरो हो जाएगा. ओनली पैरामीटर विच रिमेन्स इज डेल डब्ल्यू बाय डेल एम. ये माइनस भी लिख सकते हो आप, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है. तो डेल डब्ल्यू बाय डेल एम पैरामीटर विल बी, अगर जो भी साइन कन्वेंशन होगा आप यूज करोगे तो वो ऑब्वियसली वर्क डन बाय द सिस्टम. वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या रहता है, नेगेटिव और पॉजिटिव? टेल मी प्लीज. वर्क डन ऑन द सिस्टम क्या रहता है? On the system negative. ऑन द सिस्टम नेगेटिव रहता है. तो कंप्रेसर को हम सप्लाई कर रहे हैं वर्क, तो ऑब्वियसली ये जो पैरामीटर रहेगा डेल क्यू बाय डेल एम माइनस डेल डब्ल्यू बाय डेल एम, ये नेगेटिव रहेगा. करेक्ट. सो डेल डब्ल्यू बाय डेल एम वो आप जब साइन कन्वेंशन यूज करोगे तब करो, लेकिन यहाँ पे मैं साइन कन्वेंशन कंसीडर नहीं कर रहा हूँ. तो डेल डब्ल्यू बाय डेल एम विल बी इक्वल टू H2 माइनस H1 आएगा. मतलब क्या है, जो भी एच एंथैल्पी क्या रहता है, एनर्जी कंटेंट. एंथैल्पी एट एंट्री पॉइंट माइनस एंथैल्पी एट एग्जिट पॉइंट. देखो एंथैल्पी एट एग्जिट पॉइंट ऑब्वियसली कंप्रेसर का ज्यादा रहेगा, बिकॉज एग्जिट में प्रेशर टेम्परेचर ज्यादा रहता है. करेक्ट. सो जो वर्क डन आएगा H2 का वैल्यू ज्यादा रहेगा, बिकॉज प्रेशर एंड टेम्परेचर एंड एनर्जी कंटेंट. एंथैल्पी क्या होता है बताओ मुझे. U प्लस पीवी इंटरनल एनर्जी होता है. इंटरनल एनर्जी इज रिलेटेड टू व्हाट, टेम्परेचर. सो एग्जिट में टेम्परेचर कंप्रेसर का ज्यादा रहता है, एयर का, और प्रेशर भी ज्यादा रहता है. सो U प्लस पीवी का प्रोडक्ट जो रहता है वो ज्यादा रहेगा. इसका मतलब एंथैल्पी एट द एग्जिट ज्यादा रहेगा. इसका मतलब H2 का वैल्यू ज्यादा रहेगा. समझ में आ रहा है आपको? H2 माइनस H1 ये वैल्यू मिलेगी मुझे. और जो एनर्जी चेंज रहेगा, एनर्जी चेंज रहेगा, दैट एनर्जी चेंज will be that work supplied will be expressed in the form of energy change which is H2 minus H1. So जो भी हम वर्क सप्लाई करते हैं वो तो मेजर नहीं कर सकते, लेकिन कितना अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हमने सप्लाई किया इन द फॉर्म ऑफ वर्क वो हम फाइंड आउट कर सकते हैं. कैसे? H2 माइनस H1 करके, एंथैल्पी चेंज करके. यही एप्लीकेशन है फर्स्ट लॉ का. अभी सिमिलर एग्जांपल हम
I think I have not mentioned a minus sign over here. If I had mentioned a minus sign over here, minus del W by del M, this H2 minus H1 parameter will come negative. And that is why that is an indication that work is being supplied to the system. नेक्स्ट है हीट इंटरैक्टिंग डिवाइस. जैसे कि ये इक्वेशन है हीट एक्सचेंजर का. अभी हीट एक्सचेंजर का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखो. ये पाइप है जिसमें क्या हो रहा है, फ्लूइड एंटर कर रहा है. फ्लूइड एंटर कर रहा है, लेट्स से वाटर एंटर कर रहा है, राइट. तो ये इनफ्लो है. मैंने कंट्रोल वॉल्यूम कंसीडर किया. कंट्रोल वॉल्यूम कौन सा कंसीडर किया? ये 1 एंड 2 वाला कंट्रोल वॉल्यूम मैंने कंसीडर किया. इस सिस्टम को एनालाइज कर रहा हूँ. सिस्टम में क्या एंट्री कर रहा है? मास एंट्री कर रहा है, मतलब वाटर एंट्री कर रहा है, वो वाटर एग्जिट भी कर रहा है सिस्टम में से. कंट्रोल वॉल्यूम में से जो कंट्रोल वॉल्यूम है हमारा, उस कंट्रोल वॉल्यूम में वाटर एंटर कर रहा है मतलब मास एंटर कर रहा है, वाटर एग्जिट कर रहा है मतलब मास एग्जिट कर रहा है, राइट. और इस वाटर को मैं हीट भी सप्लाई कर रहा हूँ. कैसे भी कर रहा हूँ, हीटर से कर रहा हूँ या फिर कैंडल से कर रहा हूँ या फिर कुछ किसी फ्यूल से कर रहा हूँ. सो हीट इज ऑल्सो सप्लाइड. सो हीट पर यूनिट मास इज सप्लाइड टू दिस कंट्रोल वॉल्यूम एज वेल एज दिस मास इज फ्लोइंग इनसाइड द कंट्रोल वॉल्यूम. बट द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद द फ्लो स्ट्रीम इज वेरी वेरी नेग्लिजिबल. बहुत ही स्लो ये वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है. तो काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल है यहाँ पे. और पोटेंशियल एनर्जी तो नहीं है, बिकॉज 1 सेक्शन देखो और 2 सेक्शन देखो, दोनों भी सेम पॉइंट पे हैं. इसका मतलब हाइट पैरामीटर नहीं है. इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी चेंज ऑब्वियसली एट 1 पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट 0 रहेगा. सो काइनेटिक एनर्जी 0, पोटेंशियल एनर्जी 0. तो यहाँ पे देखो ये जो फर्स्ट लॉ इक्वेशन था डेल क्यू बाय डेल एम माइनस डेल डब्ल्यू बाय डेल एम इज इक्वल टू H2 माइनस H1 था. यहाँ पे डेल क्यू है, पैरामीटर है, बिकॉज हीट आई एम सप्लाइंग, बट वर्क नहीं है यहाँ पे. ये जो कंट्रोल वॉल्यूम है इसमें से कुछ वर्क नहीं मिल रहा है मुझे, राइट. ये वाटर फ्लो करके कुछ वर्क नहीं दे रहा है मुझे. तो वर्क पैरामीटर ऑब्वियसली बिकम्स 0. सो जो भी हीट मैं सप्लाई कर रहा हूं यहाँ पे कैन बी फाउंड आउट यूजिंग एंथैल्पी चेंज. 2 की जगह हीट सप्लाई करने के बाद इसका क्या होगा, इस वाटर का टेम्परेचर बढ़ेगा. और दैट इज वाई ये 2 सेक्शन पे जब वाटर जाएगा, यहाँ पे जो एंथैल्पी मिलेगा मुझे वो ज्यादा रहेगा कंपेयर टू एट स्टेट 1. So that's why जो enthalpy change भी मैं find out करूंगा, तो how much amount of heat I have supplied to this pipe, ये मैं find out कर सकता हूँ. So this is the real life application of first law applied to heat interacting device which is called heat exchanger. ठीक है. One more example. Let us take an example of nozzle. Nozzle का example लेते हैं. Nozzle में क्या होता है बताओ मुझे. Nozzle का कोई बता सकता है क्या होता है nozzle में? Nozzle कुछ converging शेप का होता है जिसमें वाटर इन करता है और वाटर एग्जिट भी करता है. स्टीम इन करती है, स्टीम एग्जिट करती है मोस्ट ऑफ द टाइम. नोजल से वेलोसिटी बढ़ जाती है वाटर की. वेरी नाइस, वेरी गुड. तो हम यूज करते हैं ये स्टीम का प्रेशर बढ़ाने के लिए, वेलोसिटी बढ़ाने के लिए, राइट. प्रेशर कम करने के लिए, वेलोसिटी बढ़ाने के लिए यूज करते हैं हम ये. तो ज्यादा वेलोसिटी से स्टीम बाहर जाए और वो टरबाइन पे स्ट्राइक करे, इसलिए नोजल यूज करते हैं, बराबर. तो ये जो फर्स्ट सेक्शन होगा यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी चेंज हो रहा है बिकॉज ऑफ द शेप चेंज, वेलोसिटी चेंज हो रहा है. लेकिन देखो आप पोटेंशियल एनर्जी देखो यहाँ पे भी, ये जो पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा वो बहुत ही नेग्लिजिबल होगा यहाँ पे. क्योंकि नोजल में देखो, नोजल कितना छोटा होता है और उसमें पोटेंशियल एनर्जी कहाँ होगी, तो फ्लूइड में नहीं होती है. तो 2 सेक्शन पे जहाँ पे कंट्रोल वॉल्यूम में कंसीडर करता हूँ, वहां पे पोटेंशियल एनर्जी चेंज 0 रहता है ऑलमोस्ट. सो पोटेंशियल एनर्जी इज नेग्लिजिबल, बट वेलोसिटी बहुत चेंज होती है. जैसे कि आपका पाइप जो रहता है, पाइप को आप आगे की तरफ थोड़ा सा अंगूठा लगाओगे तो वेलोसिटी बढ़ती है वाटर की, राइट. सो सेम नोजल वैसे ही काम करता है. वेलोसिटी चेंज हो रहा है मतलब जो एंट्री कर रहा है वेलोसिटी वाटर का वो अलग है, एग्जिट कर रहा है वो अलग है. मतलब वेलोसिटी चेंज है मतलब काइनेटिक एनर्जी चेंज वैलिड है यहाँ पे, राइट. तो कंसिडर करना पड़ेगा. लेकिन हम यहाँ पे हीट भी सप्लाई नहीं कर रहे हैं और उस नोजल में से मुझे कुछ वर्क भी नहीं मिलता है. So my heat interaction becomes 0, my work interaction becomes 0. So what that is equal to, ये 0 equals to क्या होगा मेरा, H2 plus V2. ये मेन इक्वेशन है मेरा स्टेडी फ्लो इक्वेशन, स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन. H2 plus V2 square by 2 plus ZZ2 minus H1 plus V1 square by 2 plus ZZ1. इसमें क्या क्या 0 है देखो. H2 एंथैल्पी होगा, ऑब्वियसली होगी. V2 square होगी, वेलोसिटी एट 2 सेक्शन इज ग्रेटर देन V1, सो V2 स्क्वायर बाय 2 होगी, माइनस V1 स्क्वायर बाय 2, ये भी होगा पैरामीटर. लेकिन GZ1 एंड GZ2 0 रहेंगे बिकॉज Z2 माइनस Z1 0 रहेगा बिकॉज बोथ ऑफ देम आर ऑलमोस्ट एट द सेम पोजीशन.
दैट्स व्हाई पोटेंशियल एनर्जी चेंज इज जीरो। सो अगर इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मुझे ये आएगा एंथैल्पी चेंज विल बी इक्वल टू वेलोसिटी चेंज आएगा। मतलब क्या है इसका, जो भी एंथैल्पी क्या रहती है, एनर्जी कंटेंट रहती है। सो एनर्जी चेंज इन नोजल इज ओनली ड्यू टू वेलोसिटी चेंज। समझ में आ रहा है? यू मस्ट बी कोरिलेटिंग नाउ कि फर्स्ट लॉ कितना पावरफुल लॉ है। कौन से भी सिस्टम को फर्स्ट लॉ अप्लाई किया जा सकता है, जो भी हीट इंटरैक्टिंग एंड वर्क इंटरैक्टिंग डिवाइस है उस सारे सिस्टम में फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है, राइट? तो फर्स्ट लॉ यहाँ पे अप्लाई करने के बाद हमको ये पता चला एनर्जी चेंज जो होता है नोजल में वो सिर्फ होता है वेलोसिटी चेंज। वेलोसिटी क्या है? किसी एयर को वेलोसिटी है, किसी वाटर को ज्यादा वेलोसिटी है, मतलब क्या है, उसमें एनर्जी है। और जो एनर्जी चेंज है, जो एंथैल्पी चेंज होगा, वो एनर्जी चेंज किसकी वजह से है? वेलोसिटी की वजह से है। ये हमको नोजल में समझ में आया। और जब कंप्रेसर को हमने देखा, कंप्रेसर में एनर्जी चेंज जो है वो किस वजह से है? बिकॉज ऑफ द वर्क वी हैव सप्लाइड। इलेक्ट्रिसिटी जो हमने दिया है उसकी वजह से मोटर घूम रही है, मोटर की वजह से उस एयर का प्रेशर बढ़ रहा है। मतलब जो एनर्जी चेंज H2 - H1 जो है वो एनर्जी चेंज किस वजह से, किसकी वजह से है? बिकॉज ऑफ द वर्क व्हिच वी हैव सप्लाइड पर यूनिट मास बेसिस पे, राइट? तो ये कोरिलेट करना सीखो। अभी आपका टास्क ये होगा, जिसको थर्मोडायनामिक्स बहुत अच्छे से समझना है और लाइफ में कुछ अच्छा बनना है, उनको क्या करना है, टेक एनी प्रैक्टिकल एग्जांपल which you find in engineering application, any practical example, and try to apply the first law to this that system. And after applying the first law to it, or steady flow energy equation to that practical application, you will see, you will get an equation, final equation, where you will be able to analyze कि यार सही सही में ऐसा ही होता है। जैसे कि नोजल में हमने देखा कि नोजल में जो हीट एनर्जी चेंज होता है, इट इज ओनली ड्यू टू वेलोसिटी चेंज, बाकी कुछ नहीं होता है। नोजल में एनर्जी क्या रहती है? एनर्जी जो भी रहती है बिकॉज ऑफ द वेलोसिटी डिफरेंस रहती है, नथिंग एल्स। So this is how we can apply the first law of thermodynamics to open flow system. यहाँ तक हमने दोनों सिस्टम को कंप्लीट किया है। क्लोज्ड सिस्टम को फर्स्ट लॉ कैसे अप्लाई करते हैं, डेल क्यू माइनस डेल यू डी यू इज इक्वल टू डेल डब्ल्यू, ये होता है हमारा फर्स्ट लॉ अप्लाइड टू क्लोज्ड सिस्टम। एंड फर्स्ट लॉ अप्लाइड टू ओपन सिस्टम में तीन इक्वेशन जो मैंने बताए थे, पहला वाला टॉप वाला इक्वेशन, सेकंड स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, थर्ड ये वाला इक्वेशन, जो कि सिर्फ सिंप्लीफिकेशन ऑफ फर्स्ट लॉ अप्लाइड टू ओपन फ्लो सिस्टम है, बाकी कुछ नहीं है। नीचे अगर आपको ये पहला वाला लॉ इक्वेशन पता है तो नीचे वाले सारे अपने आप आ जाएंगे, ठीक है? तो स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट वन। तो यहाँ तक अगर किसी को डाउट है तो बताओ, अदरवाइज आई विल क्लोज द सेशन। टेक डाउन द अटेंडेंस एंड वंस यू टेक द अटेंडेंस प्लीज लेट मी नो। Yes, sir. Yes, sir. Did you have you taken the attendance? Yes, sir. All right, 25 students are there. And please ask me question, at least one question कि सर इसमें से ये नहीं समझ में आया, रिपीट करो इसको। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से लेक्चर में अपलोड, आज ही मैं लेक्चर क्लासरूम में अपलोड करूंगा। आई होप यू आर गेटिंग ऑल माय लेक्चर्स ऑन क्लास वर्क। आर यू गेटिंग माय लेक्चर्स? Yes, sir. We are getting it. Yes, today itself I will upload a lecture. I will upload this Zoom session. You see it again and again. And if you have any question, you can send it to me personally on my WhatsApp. Sir, ये समझ में नहीं आया, please explain to me. I will explain to you. ठीक है? Yes, sir. तो प्लीज सिंगल बुक ओपन करो आज और ये पढ़ाई करो थोड़ा सा, और ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी आप देखोगे तो भी आपका पढ़ाई हो जाएगा, ठीक है? इसके ऊपर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।